Hello friends, this is your online tutor Shaunak Vyas. In today's class, we will learn about the concept and preparation of subsidiary books. Let's start. Look at this flowchart very carefully. The place where all financial transactions of business are recorded first time is called Book of Original Entry or Book of Prime Entry. The Book of Original Entry is classified into three. A book where all cash transactions are recorded is called cash book. Books where all credit transactions are recorded is called subsidiary books. And a book where all rest transactions are recorded is called journal. Let's learn more about subsidiary books. So what do we prepare here and using what documents? A subsidiary book where all credit purchases of goods is recorded is called purchase book. We take data from invoices issued by suppliers to maintain the purchase book. When goods are returned to the supplier, it is recorded in purchase return book, and debit notes issued by us to the suppliers is the source data for the same. When we sell the goods, we record in sales book, and we take data from invoices issued by us from time to time. Sold goods are when returned to us. It is recorded in sales return book, and credit notes issued by us from the customers is the source document. In and all, we prepare 4 subsidiary books, namely purchase book, purchase return book, sales book, and sales return book. An important thing to note is in purchase return, buyer issues debit note, and in case of sales return, seller issues credit note. Now let's learn few rules regarding preparation of subsidiary books. Only credit transactions related to goods are recorded here. So two terms are important here, credit and goods. So if transaction is not credit transaction, it is not recorded in subsidiary book, and if transaction is not related to goods, it is not recorded in subsidiary books. So what things are not recorded? Let's go through the list. All cash transactions are not recorded. Purchase and sale of assets not recorded. Payment of liabilities are also not recorded. When we place an order, that's not recorded. When we receive an inquiry, it is not recorded in the books of accounts. Kindly take the screenshot of this so that you can use it for future. Let's see the format in which we prepare subsidiary books. Here we have 4 books, purchase book, followed by purchase return, and on the opposite side it is sales book and sales return book. In purchase book, we prepare columns such as date, name of the supplier, जिन्होंने हमको goods बेचा है उनका नाम, name of the supplier, LF that is ledger folio, inward invoice number, जो बिल हमको मिला है वो बिल का नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब गुड्स का वैल्यू, डिस्काउंट अगर कुछ हमको दिया है और वो माइनस किया है तो वो हम लोग डिस्क्रिप्शन कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, एंड द फाइनल अमाउंट. In the same way, in purchase return, we record date, name of the supplier, LF, debit note number. हमने पहले वाली slide में देखा था that in case of purchase return, we issue debit note and that debit note number we will record here. Then the description and finally amount. On the other side, we record a sales book, and in sales book we have prepared columns such as date, name of the customer, मतलब जिन्होंने हमसे गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है उनका नाम, मतलब जो हमारे डेटर बन गए, LF लेजर फोलियो, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर मतलब हमारी बिल बुक जो हमने सामने वाले पर्सन को दिया है, बायर को दिया है, वो बिल का नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स, ग्रॉस अमाउंट, एंड बाद में जो डिस्काउंट ऑफर किया वो, एंड फाइनल अमाउंट. लास्ट सेल्स रिटर्न बुक, जो माल हमने बेचा है अगर वो हमारे पास रिटर्न आ गया, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक. वी प्रिपेयर कॉलम सच एज डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, जिन्होंने रिटर्न किया है उनका नाम, LF, क्रेडिट नोट नंबर, जब वो हमको गुड्स रिटर्न करेंगे तो गुड्स के साथ में हमको एक नोट भेजेंगे, वो नोट का नाम है क्रेडिट नोट, और उसका जो नंबर होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड देन डिस्क्रिप्शन एंड दी अमाउंट. आई होप आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर है. Let's quickly go ahead.
I have prepared some hypothetical transaction in the books of Mr. Shaunak, and very quickly we will read all the transactions, and you are supposed to answer two questions here. The first question you will face is where will we record. ओके आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के पहला आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। आपको तुरंत ही आइडेंटिफाई करना है कि आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट अमाउंट यू विल राइट। सो दो बातें आपको आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ लिखोगे और कितना पैसा लिखोगे। इज इट ओके? ओके, लेट्स गो अहेड. Be very alert. We will spend about 40 seconds for each transaction. Let's start. Record the following transaction in the books of Mr. Shaunak. Okay. The first transaction is goods worth rupees 10,000 purchased from Mr. Amar. हमने अमर के पास से गुड्स खरीदा है। बोलो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे? सीधी बात है, परचेज बुक में। कितना अमाउंट? ऑफ कोर्स 10,000। अब इसे हम बुक में लिखेंगे कैसे? लेट्स लर्न। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। आपके कन्वीनियंस के लिए उसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है सो दैट यू कैन लुक एट इट वेरी इजीली। मूविंग अहेड, सेकेंड ट्रांजैक्शन, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर अमर। हमने फर्स्ट को क्या किया था? 1 जन को अमर से गुड्स खरीदा। 2 जन को हम क्या कर रहे? अमर को गुड्स वापस दे रहे। जब हमने खरीदा था तो परचेज बुक में लिखा, जब हम अमर को रिटर्न कर रहे, सोचो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वेयर विल वी रिकॉर्ड? यस, वी विल बी रिकॉर्डिंग इन परचेज रिटर्न बुक। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू मिस्टर अमर वर्थ रुपीज 1,000। और एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा परेशान करने के लिए क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। देखो उसका स्टाइल क्या हो सकता है, इश्यूड डेबिट नोट टू मिस्टर अमर। क्योंकि हमने अमर से खरीदा है, ओके, तो हमने क्या किया? हमने डेबिट नोट इश्यू कर दिया अमर को। सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? 1,000 रुपीज। लेट्स सी हाउ इट इज रिकॉर्डेड। परचेज रिटर्न बुक में जैन टू मिस्टर अमर 1,000 रुपीज। क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स क्विकली गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम मिस्टर मल्हार। हमने मल्हार से 20,000 का माल खरीदा एट द रेट 10% TD। व्हाट इज TD? ट्रेड डिस्काउंट। अब मिस्टर मल्हार ने हमको 10% का डिस्काउंट दिया है। पहली बात, हमने क्या किया है? मल्हार से गुड्स खरीदा है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे हम? परचेज बुक में। अब अमाउंट कितना होगा? 5 सेकंड देता हूं, सोचो व्हाट विल बी द अमाउंट। गुड, अच्छा सोच रहे हो। 20,000 में से डिस्काउंट माइनस होना चाहिए। 20,000 माइनस 2,000 का डिस्काउंट। अगर 20,000 का 10% हम ढूंढे, इट विल बी 2,000 रुपीज। माइनस किया तो 18,000। लेट्स सी हाउ वी विल रिकॉर्ड। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड। डिस्क्रिप्शन का कॉलम कुछ कॉलेजेस में ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर। अगर बोला जाए तो प्रिपेयर करो, नहीं बोला जाए छोड़ दो। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज वी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 दैट इज ग्रॉस अमाउंट टू मिस्टर मल्हार। हमने मल्हार से 3 तारीख को खरीदा था, 4 तारीख को 5,000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया। पहला क्वेश्चन, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सीधी सी बात है, परचेज रिटर्न बुक में। क्या अमाउंट होगा? देखो 5,000 के बाजू में ग्रॉस वर्ड लिखा है। जब ग्रॉस वर्ड लिखा है इसका मतलब जो डिस्काउंट आया है ना, वो डिस्काउंट का एलिमेंट भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 5,000 का 10% डिस्काउंट क्या हो जाएगा? सोचो। ऑफकोर्स 10% इज 500 रुपीज़। एग्ज़ाम में आपको ये अलग अलग क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बहुत संभाल करके एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो एक्सप्लेनेशन में दिया है 5,000 माइनस 500 इज 4,500। लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 टू मिस श्रेया। श्रेया को हमने 12,000 का गुड्स बेच दिया है। जब हमने गुड्स बेचा है, बराबर है, श्रेया को, तो अगर बेचा हुआ है तो इसको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? वेयर विल वी रिकॉर्ड दिस? सीधी सी बात है, सेल्स बुक में।
क्या अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करेंगे? श्रेया को जो गुड्स बेचा है वो 12,000 rupees. Question is quite easy and simple. Let's see how do we record. This is how we record in sales book. Next transaction. 6th of Jan को क्या हुआ है? गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न्ड बाय मिस श्रेया. मतलब जो हमने 5 तारीख को श्रेया को गुड्स बेचा था, श्रेया ने हमको क्या किया, 6 तारीख को 2,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया. और इश्यूड क्रेडिट नोट टू मिस श्रेया, हमने श्रेया को क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया है 2,000 रुपये का. चलो, वेयर वी विल रिकॉर्ड, सीधी सी बात है, सेल्स रिटर्न में हम रिकॉर्ड करेंगे इसे. व्हाट विल बी द अमाउंट? 2,000. इसमें कोई डिस्काउंट एलिमेंट नहीं है. लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड. क्वाइट ईजी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. 7 तारीख को क्या किया है? इनवॉइस्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू मिस देवांशी एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा टास्क दे दिया है क्वेश्चन में. इनवॉइस्ड वर्ड दिया है, ये आइडेंटिफाई करना है. इनवॉइस वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ. इनवॉइस मतलब सोल्ड. अब आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. इनवॉइस्ड वर्ड को रिप्लेस कर दो सोल्ड से, बराबर. चलो, पहला क्वेश्चन, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे? आंसर इज सेल्स बुक, क्योंकि इनवॉइस वर्ड का मतलब सोल्ड है, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा. व्हाट विल बी दी अमाउंट? भूलना मत, यहाँ पे डिस्काउंट है. चलो 5 सेकंड दिया, कैलकुलेट करो. 30,000 का 5% डिस्काउंट कितना होगा? कैलकुलेट करो रफ में. ठीक है, चलो आपने कैलकुलेट किया होगा. अमाउंट विल बी 30,000 माइनस 1,500. 30,000 रुपये का 5% निकालोगे 1,500 रुपया आएगा. और 30,000 में से 1,500 माइनस करोगे 28,500 इज दी नेट अमाउंट. लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड. दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इन सेल्स बुक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. 8 तारीख को क्या किया है? मिस देवांशी रिटर्न गुड्स टू अस. देवांशी ने हमको गुड्स वापस कर दिया 6,000 रुपये का ग्रॉस अमाउंट. जब हम ग्रॉस वर्ड बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट का एलिमेंट उसमें से निकाल देना है. और मिस देवांशी इश्यूड डेबिट नोट. देवांशी ने हमको डेबिट नोट दे दिया है. देखो, हर जगह पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट के क्वेश्चन को चेंज द वॉइस किया है. ओके, किसके एंगल से क्वेश्चन बनाया है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो देवांशी ने अगर हमको सॉरी मिस देवांशी रिटर्न गुड्स टू अस, वेयर विल वी रिकॉर्ड? सेल्स रिटर्न. उन्होंने हमको रिटर्न दिया है, मतलब हमने उनको गुड्स बेचा था एग्जाम टाइम पे, तो उन्होंने हमको रिटर्न दिया है. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू थिंक. ओके, एंड व्हाट विल बी दी अमाउंट? तो डिस्काउंट के साथ हम कैलकुलेट करेंगे. हाँ, 6,000 का पहले हमको 5% ढूंढना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसको हम 6,000 से माइनस कर देंगे. सो 6,000 माइनस 300. 6,000 का 5% क्या होता है? 300 रुपीज़. 5,700 का नेट अमाउंट हाथ में आ गया. एंड दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. 9th Jan को क्या हुआ है? बॉट गुड्स ऑफ ₹14,000 फ्रॉम मीत एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ ₹1,000. क्वेश्चन इज वेरी इजी. द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, एक हमने मीत से गुड्स खरीदा और दूसरा 1,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया. अब ज़रा याद करो रूल बुक में क्या लिखा था. अगर हम कुछ कैश में पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं तो क्या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगा? जी नहीं. सब्सिडियरी बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है. इसका मतलब ये जो 1,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. यू आर जस्ट सपोज टू इग्नोर दैट. आपको सिर्फ हटा देना है दिमाग से कि वो क्वेश्चन का पार्ट है. बस अब रिकॉर्ड करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमने गुड्स खरीदा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. एंड व्हाट विल बी दी अमाउंट? 14,000. जो 1,000 रुपये इसका कैश एक्सपेंडिचर है दैट वी विल बी राइटिंग इन कैश बुक. सब्सिडियरी बुक में उसका कोई रिकॉर्डिंग होता नहीं है. लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड इन परचेज बुक. Jan 9, Mr. Meet, 14,000 rupees. Next transaction is 10th of Jan. Sold goods purchased from Mr. Meet to Mr. Devarsh. मतलब हमने गुड सेल किया है. कौन सा गुड सेल किया है हमने? जो हमने मिस्टर मीत से खरीदा था. तो मीत से खरीदा हुआ गुड्स हमने देवर्ष को बेच दिया. अब कॉमन सेंस की बात, क्या कॉस्ट प्राइस पे हम बेचेंगे? 14,000 का गुड्स हमने खरीदा था 9 तारीख को. देखो जरा ऊपर के ही ट्रांजैक्शन में लिखा है. तो 9 जनवरी को हमने 14,000 का गुड्स हमने मीत से खरीदा.
देवर्ष को बेच दिया तो कॉस्ट पे तो बेचेंगे नहीं, तो क्या ऐड करके हम बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे। कितना प्रॉफिट ऐड करना है, देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है @25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो जो प्राइस पे आपने खरीदा था उस पर 25% ऐड कर दो, बराबर। पहली बात, रिकॉर्ड इसको हम कहाँ करेंगे, तो क्योंकि हमने गुड्स बेचा है ओके देवर्ष को, तो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या अमाउंट पे हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं 25% प्रॉफिट कितना होता है, तो 14,000 का 25% हम गिनेंगे तो 3,500, ये हमारा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर प्लस करेंगे ओके। तो क्या आंसर हमको मिल जाएगा, 14,000 प्लस 3,500, द फाइनल अमाउंट इज 17,500। मतलब हमने जो गुड्स बेचा है उसकी वैल्यू है 17,500 रुपया। लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इन सेल्स बुक। देवर्ष का हम नाम लिखेंगे और सामने 17,500 का फिगर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 11 तारीख को क्या हुआ है, मिस्टर देवर्ष रिटर्न गुड्स टू अस। मिस्टर देवर्ष ने हमको गुड्स वापस कर दिया। कितने रुपए का रिटर्न किया है, 1750 का। ब्रैकेट में क्या वर्ड लिखा है, ग्रॉस वर्ड लिखा है। तो हर जगह पे हम क्या करते थे, जब डिस्काउंट आया तो हम क्या करते थे, ये ग्रॉस आया तो ऊपर वाला फिगर परसेंटेज देखने का और माइनस करने का, बराबर। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड। जब हमको सेल्स रिटर्न आया है तो उसमें से हम प्रॉफिट का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट को प्राइस में से बाहर नहीं निकालेंगे। जो प्राइस पे हमने बेचा था वही प्राइस पे हम उसको हम रिटर्न भी लेंगे, मतलब विथ प्रॉफिट। प्रॉफिट को इसमें से निकालना नहीं है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस वर्ड दे दिया। जैसे ग्रॉस वर्ड दिया तो बच्चे क्या करेंगे, सीधा 25% माइनस कर देंगे। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट, वेयर डू वी रिकॉर्ड दिस, ऑफकोर्स इन सेल्स रिटर्न बुक। एंड व्हाट विल बी दी अमाउंट, 1750। बस ये प्लेस पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्रॉस वर्ड लिखा है, उसको आप इग्नोर करिए, बराबर। कॉमन सेंस लगा करके सम्स करना। लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बुक में Jan 11 मिस्टर देवर्ष 1750। क्विकली गो अहेड। परचेज 20 पेयर्स ऑफ नाइकी शूज ऑफ ₹1200 पर पेयर। मतलब हमने 20 पेयर खरीदे। एक पैर का कितना है, 1 पेयर ऑफ नाइकी शूज़ का 1200, और कंपनी ने हमको कितना परसेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया, 5%। हमने गुड्स खरीदा है तो उसको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट कितना होगा, तो कैलकुलेशन के साथ सीखते हैं हम लोग, क्योंकि हमने 20 पेयर्स खरीदे हैं 1200 के भाव पे। टोटल हमारा हो गया 24,000 रुपीज़। डिस्काउंट का एलिमेंट हम माइनस करेंगे, 5% डिस्काउंट ऑफ 24,000 इज 1200 रुपीज़, बराबर। ये आपको रफ में करना पड़ेगा ये सब चीज़ें एग्जाम में। So 24,000 minus 1200 is 22,800. How do we record? Quite simple. बहुत आसान तरीका है। अब रिकॉर्ड करना आई थिंक आप लोगों को जम गया है, बराबर। नहीं समझ में आता है, वीडियो थोड़ा पॉज करो, फिर कैलकुलेशंस देखो, कैसे रिकॉर्ड किया है वो याद रखो, फिर आगे वीडियो आगे बढ़ाना बेटा। लेट्स क्विकली गो हेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 13th को 60% ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम नाइकी शूज़ वर सोल्ड टू मिस्टर तक्ष। हमने नाइकी शूज़ से कितने पेयर ऑफ शूज़ खरीदे थे, पहले मुझे ये बताओ। देखो 12 जैन का ट्रांजैक्शन वापस रिफर करो, बराबर आपके ऊपर लिखा है, देखो अभी बराबर 20 पेयर्स हमने खरीदे, उसमें से कितने पेयर्स हमने बेच दिए, 60%। अब आपको ये ढूंढना है कि 20 का 60% कितना होता है। हाउ डू वी कैलकुलेट, 20 इंटू 60 अपॉन 100। अगर आप ऐसा करोगे तो 20 का 60% आपको मिल जाएगा। 12 पेयर ऑफ शूज़ हमने बेचा है। किसको बेचा है हमने, तक्ष को बेचा है। कौन से प्राइस पे बेचा है, लिस्ट प्राइस पे। अब ये लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो लिस्ट सेलर देता है बायर को, वो प्राइस को बोला जाता है लिस्ट प्राइस। हमको क्वेश्चन में ऊपर मेंशन करके दिया है कि 1200 रुपये में हमने खरीदा, तो 1200 रुपया इज द लिस्ट प्राइस। चलो देखते हैं। हमने गुड्स खरीदा है नाइकी से, बेचा है किसको, तक्ष को। यह हम ट्रांजैक्शन किसका कर रहे हैं, तक्ष का। तो रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये इसमें तो हमने बेचा है तक्ष को। व्हाट विल बी दी अमाउंट, देखो 12। अब ये 12 कहाँ से आया, 20 का 60% इज 12 पेयर ऑफ शूज़ मल्टीप्लाइड बाय 1200 रुपीज़ पर पेयर। अमाउंट कितना हो गया, 14,400। हाउ डू वी रिकॉर्ड, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड। आप सब कैलकुलेशन रफ में करेंगे, फेयर में सीधा आंसर दिखाएंगे आप। गोइंग फॉर द नेक्स्ट
14th Jan 2025 मिस्टर हितांश इनवॉइस्ड गुड्स टू अस। अब मैं इनवॉइस्ड वर्ड का मीनिंग भूल गया हूँ, आप मुझे बताओ, बोलो इनवॉइस्ड क्या होता है? याद आया? इनवॉइस्ड इज सोल्ड। मिस्टर हेतांश सोल्ड गुड्स टू अस। हेतांश ने हमको बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने हेतांश के पास से परचेज किया है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसी लैंग्वेजेस फ्रेम की जाती है। बराबर है? हमने क्या किया है? हितांश के पास से परचेज किया है। वेयर डू वी रिकॉर्ड? परचेज बुक। व्हाट इज द अमाउंट? 8000। एकदम आसान क्वेश्चन था। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज को ट्विस्ट किया। यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन सच काइंड ऑफ चैप्टर्स। लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड। बहुत सिंपल है रिकॉर्डिंग। तो परचेज बुक में सीधा हितांश का नाम लिखा, तारीख लिखा, अमाउंट लिखा, खत्म। सीधे मार्क आपके जेब में। आगे बढ़ते हैं। 15 जैन को क्या हुआ? सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स टू मिस्टर तीर्थ, परचेज फ्रॉम मिस्टर हितांश। जो गुड्स हमने हितांश से खरीदा था उसका आधा गुड्स हमने तीर्थ को बेच दिया। कितना बेचा है हमने? आधा। तो 8000 का गुड्स हमने खरीदा था, उसका आधा हमने बेच दिया है। तो 8000 का आधा कितना होता है? 4000 होता है। अब हम क्या कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। क्या हम ऐड करेंगे उसके अंदर? प्रॉफिट ऐड करेंगे। कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करने के लिए हमको क्वेश्चन में बोला गया है? 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर 20%। हमारे तो हाथ में 4000 रुपया जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और हमको 20% किसका लेना है? सेलिंग प्राइस का लेना है। इसका मतलब हमारे हाथ में प्राइस नहीं है फिलहाल। पहला क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना है कि इसको हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, क्योंकि हमको सोल्ड बोला है तो आसान बात हो गई कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट क्या हम रिकॉर्ड करने वाले हैं? तो हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने स्कूल में सीखा था। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। जहाँ पे आपको बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो अगर हम लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपया। और कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो गया। बराबर है? 100 रुपये में हमने बेचा, जिसमें से 20 रुपया हमारा मुनाफा है, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 80 रुपया हो गई। देखो वही मैंने लिख दिया आपके लिए नीचे। 80 + 20 इज इक्वल्स टू 100। हमारे पास जो 4000 था वो कौन सी प्राइस है? हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। तो हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। कॉस्ट के नीचे लिख दिया 4000 और सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दिया x। अब याद करो स्कूल में क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बराबर है? देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते थे, इस तरीके से। देखो बाजू में आपको करके दिखा दिया मैंने। x इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। अगर इस ऐसे आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 5000 रुपीज़। आंसर मैंने आपको पहले दिखा दिया। एक्चुअली आपको पहले कैलकुलेशन दिखना चाहिए फिर आंसर। आप ऐसे सम का ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करिएगा बेटा। ओके, चलो लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग इज इजी। सेल्स बुक में 5000 रुपया लिखना है। देख लो, सेल्स बुक, तीर्थ का नाम लिखा, 5000 रुपया लिखा। यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट है, रिकॉर्ड करना इज क्वाइट ईजी। मूविंग अहेड, 16 तारीख को क्या किया है? परचेज गुड्स ऑफ ₹5000 फ्रॉम बाय मिस धीमही। देखो यहाँ पे भी लैंग्वेज पे प्ले किया है। परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 बाय धीमही। तो धीमही ने हमसे परचेज किया है, तो हमने धीमही को क्या किया है? सेल किया है, बेचा है। उसने खरीदा तो हमने बेचा है। कौन से कंडीशन पे? 2% ट्रेड डिस्काउंट एंड 50% पेमेंट मेड। अब हमको कुछ बातें याद रखनी है। पहले तो ये ट्रांजैक्शन किसका है? तो बोलने का सेल्स का ट्रांजैक्शन है ये। बराबर है? व्हाट विल बी दी अमाउंट? तो अमाउंट में हम पहले बात करेंगे कि 5000 का माल है और 2% का डिस्काउंट है, तो हम पहले 2% का अमाउंट ढूंढ लो। 5000 का 2% होता है 100 रुपीज़। 5000 में से 100 रुपीज़ हमने माइनस कर लिया तो हो गया 4900, जिसमें से 50% का पेमेंट हो चुका है। तो 4900 का 50% कितना हो गया? 2450। तो 50% का पेमेंट हुआ है तो बाकी का 50% बाकी है। तो जो अमाउंट बाकी है उसको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए ऐसे। सेल्स बुक Jan 16 मिस धीमही 2450 का अमाउंट। रिकॉर्डिंग इज वेरी इजी। कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट है। हर जगह पे वीडियो पॉज करते जाओ, कैलकुलेशंस देखते जाओ। एक रफ बुक में अगर आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करते जाओ।
17 को क्या हुआ, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम द्विजा। द्विजा नाम की कोई लड़की है जिससे हमको 10 पेयर ऑफ फुटवेयर्स का ऑर्डर मिला है। अब ऑर्डर मिला है तो क्या उसके हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्डर मिलने पे ना गुड्स आया है ना गुड्स गया है, ना कैश आया है ना कैश गया है, तो रिकॉर्ड क्या करेंगे। सो देयर विल बी नो एंट्री, अमाउंट इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अब आप बोलोगे सर नो एंट्री है तो 4 बुक में से हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, तो क्या एग्जाम में हमको डायरेक्ट मार्क मिल जाएंगे। आंसर इज नो। जहाँ पे सम खत्म होगा वहाँ पे आपको ऐसे नोट का कॉलम बनाना है और वहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपको नोट लिखते जाना है, डेट लिखनी है और क्यों आपने वो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है उसका रीज़न लिखना है। देखो क्या लिखा है, नो एंट्री इज टू बी पास्ड फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर 17th of Jan। ईजी। चलो ये तो फ्री के मार्क्स थे। 18 तारीख को क्या हुआ है, हमको जो ऑर्डर मिला था द्विजा से, हमने उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट का मतलब बेच दिया। अब यहाँ पे गुड्स हमारे पास से बाहर गए हैं तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या प्राइस पे हमने द्विजा को गुड्स भेजे हैं, तो बोलने का 300 रुपीज़ क्वेश्चन ने बोला है, बराबर है। तो 10 फुटवेयर भेजा 300 रुपये के भाव पे, बराबर है, बेच दिया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने सॉल्व हो गया। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो पहला कैलकुलेशन हमारे दिमाग में आना चाहिए, 10 × 300 इज 3000 रुपीज़। अब कॉस्ट प्राइस पे हम भेजेंगे क्या, सीधी बात है भेजने वाले नहीं है, ये तो हमारा कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना % ऐड करना है, देखो अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं दिया है, उसने आपको दिया है 125% ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपकी चीज़ 100 रुपये की थी तो आपने 125 रुपये में दे दिया है, तो ये हमको समझना है कि 25 रुपया प्रॉफिट है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। जैसे हमने पहले सोचा था ओके, वैसे ही तरीके से हम कॉस्ट को अज्यूम कर लेते 100 रुपीज़, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 25 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गई 125 रुपया। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है। व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू, 3000। अब 3000 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अमाउंट आपके हाथ में आ गया, 3000 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हाउ डू वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3000 × 125 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर इज 3750। आई होप कैलकुलेशंस आपको क्लियर हुआ है। लेट्स सी हाउ डू वी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग इज वेरी इजी। सेल्स बुक के अंदर Jan 18 मिस द्विजा 3750। मूविंग अहेड, 19 तारीख को प्लेस्ड एन ऑर्डर टू विथ मिस्टर अक्षत। मिस्टर अक्षत को हमने ऑर्डर दिया है। अब ऑर्डर दिया है तो रिकॉर्ड करेंगे क्या, सीधी सी बात है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अमाउंट इज़ नॉट एप्लीकेबल। बट उसको हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे नीचे नोट लिखना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट नोट। सेकेंड सीरियल नंबर 19 Jan 2025, नो एंट्रीज टू बी पास फॉर प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर। ये मैंने हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में आपको कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से सीरियल नंबर देते जाना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20 तारीख को क्या हुआ है, मिस्टर अक्षत एग्जीक्यूटेड अवर ऑर्डर। तो हमने उसको ऑर्डर दिया था, उसने हमको ऑर्डर भेजा, मतलब हमने अक्षत के पास से क्या किया है, परचेज किया है। देखो अक्षत ने ऑर्डर भेज दिया हमको, कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, 15,000 रुपया। देखो 19 तारीख को आपको अमाउंट लिख के दिया, 20 तारीख के ट्रांजैक्शन के अंदर अमाउंट लिख के नहीं दिया। आपको बहुत कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा बेटा। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, भले नो एंट्री है बट फिर भी आपको दिमाग में कुछ बातें रखनी है और फिर आगे बढ़ना है। हाउ डू वी रिकॉर्ड, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग इज ईजी। परचेज बुक में अक्षत का नाम लिखा, तारीख लिखा और अमाउंट लिखा। अब लास्ट ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से मैंने बनाया है, रिटर्न गुड्स बाय मिस द्विजा वर्थ ₹650। देखो ज़रा द्विजा कौन है, द्विजा ने हमको ऑर्डर दिया था और हमने उसको ऑर्डर भेजा था, मतलब द्विजा को हमने गुड सोल्ड किया है। और 19 तारीख को हमने क्या किया है, ज़रा ट्रांजैक्शंस लाइन में देखते जाओ। 19 तारीख को 17 को द्विजा ने हमको ऑर्डर दिया, 18 को हमने द्विजा को हमने माल भेज दिया। 19 तारीख को अक्षत प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ मिस्टर अक्षत, हमने अक्षत को ऑर्डर दिया। और 20 तारीख को क्या हुआ, अक्षत ने हमको माल भेज दिया। तो द्विजा इज़ अवर सेलर एंड अक्षत इज़ अवर बायर, इतना हमको क्लियर हो गया। अब 21 तारीख को देखो, रिटर्न गुड्स बाय मिस द्विजा, तो जिसको हमने माल बेचा था उसने हमको रिटर्न कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। एंड द सेम वर रिटर्न टू मिस्टर अक्षत, बराबर है, द्विजा ने हमको दिया तो हमने क्या किया, उठा करके उसको अक्षत को दे दिया। अब कहाँ कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करना है, तो वेर रिकॉर्डेड। अब देखो जब द्विजा ने हमको माल रिटर्न किया है तो कितने रुपए का रिटर्न किया है, 650 का ग्रॉस अमाउंट। देखो वो प्रॉफिट का एलिमेंट है,
ग्रॉस लिखा है मतलब हर बार डिस्काउंट होगा तो ये हमको माइनस करना है, प्रॉफिट का एलिमेंट निकालना नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता है. वेयर विल वी रिकॉर्ड? वी विल रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. व्हाट विल वी राइट इज द्विजा 650 रुपीज़. ग्रॉस भले लिखा है फिर भी हम उसमें से कुछ निकालने वाले नहीं है. अब जब हम अक्षत को माल भेज रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तब अमाउंट हो जाएगा 520 रुपीज़. अब आप बोलोगे सर 650 रुपीज़ का 520 कैसे हो गया? ज़रा कैलकुलेशन देखो, क्योंकि हमको प्रॉफिट का एलिमेंट अक्षत को जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो निकालना पड़ेगा. अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे तो C प्लस पी इज इक्वल्स टू SP. कितना परसेंट का प्रॉफिट था? 25% का. सो 100 प्लस 25 इज 125. वैल्यू अगर डाल दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस था 650 रुपया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया तो x इज इक्वल टू 650 इंटू 100 डिवाइड बाई 125. देखो ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है. ये एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन के साथ. ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए. मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, क्योंकि उसमें ढेर सारे ट्रांजैक्शंस आपको एक साथ समझने मिल जाएंगे. ओके, चलो देखते हैं इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे. हम 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में. देख लो ज़रा, मैंने एक ही इमेज के अंदर दोनों आपको शो कर दिया. सेल्स रिटर्न कितना और परचेज रिटर्न कितना. हर जगह पे आपने एक चीज़ रिकॉर्ड आपने नोटिस किया, रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इजी, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा, और क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड रहा तो यू विल हैव टू डिकोड ना द क्वेश्चन एंड देन यू आर सपोज टू आंसर. अब हम ज़रा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला रिलेशन समझते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे बेटा. हम फर्स्ट केस स्टार्ट कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज रिटर्न थ्रू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इन द बुक्स ऑफ बायर. बहुत याद रखिएगा कि आप बायर के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन, और बायर जब रिकॉर्ड करेगा तो क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज रिटर्न. आपको ज़रा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है. मिस्टर आर इज़ अ बायर और सामने देखो मिस्टर एस इज़ दी सेलर. तो आर है वो बायर है और एस है वो सेलर है. ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. आर इज़ बायर, एस इज़ सेलर. अब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहाँ पे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगा? फर्स्ट सिचुएशन, बायर इश्यूज डेबिट नोट. अगर मिस्टर आर मिस्टर एस को डेबिट नोट दे दे तो आप रिकॉर्ड करेंगे. देखो एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिख दिया. एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सेंट डेबिट नोट टू मिस्टर एस एंड यू आर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर. अब आप बोलोगे सर सेंट डेबिट नोट, तो आपको तुरंत याद रखना है अगर हमने डेबिट नोट भेजा है तो हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये परचेज रिटर्न है. नेक्स्ट, बायर रिसीव्स क्रेडिट नोट. अगर बायर ने मतलब आर ने एस के पास से, सेलर के पास से अगर क्रेडिट नोट रिसीव किया है तो भी ये परचेज रिटर्न का चीज़ है. ये रिसीव्ड क्रेडिट नोट इश्यूड बाय मिस्टर एस. ये चीज़ें आपको एग्जाम में परेशान करती है, इसीलिए जानबूझ करके मैंने आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ ले लिया. नेक्स्ट, सेलर रिसीव्स डेबिट नोट. देखो ज़रा फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर देखिए. फर्स्ट वाला क्या लिखा है? बायर इश्यूज डेबिट नोट. और थर्ड वाला क्या है? सेलर रिसीव्स डेबिट नोट. तो बायर इश्यू करेगा तो सेलर क्या करेगा? रिसीव करेगा. कॉमन सेंस की बात है. देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं? मिस्टर एस रिसीव्ड डेबिट नोट. दिस इज हाउ दे विल कंफ्यूज यू. एंड द लास्ट पार्ट क्या दिया है? सेलर इश्यूज क्रेडिट नोट. अब जरा सेकंड आप देखिए सिचुएशन क्या थी? बायर रिसीव्स क्रेडिट नोट. अगर बायर क्रेडिट नोट रिसीव कर रहा है तो सेलर क्या करेगा? उसे इश्यू करेगा. मतलब बात एक ही है, दोनों एंगल से बोल करके आपको परेशान किया जा रहा है यहाँ पे. मिस्टर एस इश्यूड अस क्रेडिट नोट. आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुआ है. आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आप लोगों को तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट अभी हम जाएंगे सेल्स रिटर्न थ्रू डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इन द बुक्स ऑफ सेलर. पहले किसका बुक था? देखो ज़रा आपके लिए वापस कर रहा हूँ. पहले बायर का बुक था, अब किसका बुक है? सेलर का बुक है. एग्जाम्पल मैंने कॉन्स्टेंट रखा है. मिस्टर आर इज बायर, मिस्टर एस इज सेलर. कौन कौन सी सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1. तो आप बोलोगे सर सिचुएशन इज द सेम. बायर इश्यूज डेबिट नोट. अगर बायर डेबिट नोट इश्यू करता है तो सेंटेंस कैसा रहेगा यहाँ पे?
मिस्टर आर इश्यूड अस डेबिट नोट। अब यहाँ पे आप सेलर हो, मिस्टर एस की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मिस्टर आर जब डेबिट नोट रिसीव करता है, सॉरी मिस्टर आर जब डेबिट नोट इश्यू करता है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो हमको हमारी बुक में क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसे सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बायर रिसीव्स क्रेडिट नोट। अभी हम सेलर है और सामने वाला पर्सन क्रेडिट नोट रिसीव कर रहा है, तो हमने इश्यू किया होगा। मिस्टर आर रिसीव्ड क्रेडिट नोट क्योंकि वो बायर है, इश्यूड बाय अस। नेक्स्ट, सेलर रिसीव्स डेबिट नोट। अभी हम सेलर है, सामने वाला पर्सन हमको डेबिट नोट दे रहा है, तो वो अपनी बुक में परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। सो रिसीव्ड डेबिट नोट इश्यूड बाय मिस्टर आर। लास्ट, सेलर इश्यूज क्रेडिट नोट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं उसको कि भाई मैं तेरे अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब वो सेल्स रिटर्न है, इश्यूड क्रेडिट नोट टू मिस्टर आर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है, समझा है। अगर नहीं समझा, थोड़ा वीडियो बैक करो और वापस एक बार सुनो, समझो। जो जो चीज़ समझते जाते हो उसको अगर अपने बुक में भी कहीं लिखना है तो लिखते जाओ और स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब आप लोगों के लिए मैंने टोटलिंग कैसे करना है ये शोकेस किया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो चारों चार बुक हमने पूरे सब जितने ट्रांजैक्शन में बनाते गए, आपका फाइनल एक स्क्रीनशॉट आपके लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, चारों चार का आपको इस तरीके से एग्जाम में टोटल भी करके दिखाना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ज़रा पहला सिचुएशन याद करो, मैंने आपको क्या बोला था स्लाइड नंबर 2 में, दैट सब्सिडरी बुक इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ है। फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए ये जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको हम लेके जाते हैं लेजर के अंदर। तो ये परचेज बुक को लेजर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ज़रा देखो, नेक्स्ट में मैं आपको वो दिखाया है। ज़रा आप इसको शांति से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड टॉप को देखो पहले, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर शौनक परचेज अकाउंट। सीधा हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, जैन 31, मतलब जनवरी महीने के ट्रांजैक्शन से उसका लास्ट डेट। तो जैन का लास्ट डेट क्या होता है, 31। हमने क्या लिख दिया, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। एक्चुअली यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं, परचेज बुक आना चाहिए। टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो जो परचेज बुक का फाइनल अमाउंट था, देख लो जरा, पहले वाले में परचेज बुक का फाइनल अमाउंट क्या है, 87,800। तो हम यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे 87,800। इन द सेम वे परचेज रिटर्न, ज़रा देखो, परचेज रिटर्न का फाइनल अमाउंट क्या है, 6020। देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट, एक मिस्टेक मैंने किया है यहाँ पे, मुझे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक लिखना चाहिए था, अकाउंट नहीं। ओके, अमाउंट इज 6020। अब ज़रा सामने वाली साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड टॉप पे सेल्स अकाउंट है, बराबर है। अब ज़रा देखो यहाँ पे सेल्स बुक का टोटलिंग क्या है, 83,600 रुपीज़। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और फिर आएगा टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। लास्ट अभी आपको थैंक यू बोलने का टाइम आया है। देयर आर फ्यू विजडम वर्ड्स। सबसे पहली बात, सेव दिस वीडियो लिंक in your personal WhatsApp so that you can refer this video again very quickly whenever you need. I have worked hard a lot for you. Unless you convey me what is the issue faced by you while learning, I won't be able to understand. So like, share, comment and subscribe. I thank you in anticipation. Thank you very much for your support. Bye everyone.